Good morning, students. Welcome to online political science class. Again, we are moving towards the chapter that is chapter 2, end of bipolarity. In this chapter, we have seen how did USSR came into being, how did it emerge in 1917 after the Russian Revolution or the Bolshevik Revolution when many revolutionaries they have ousted up Tsar Nicholas II from his regime and USSR came into being. Okay, so the first president of USSR was Vladimir Lenin, who has established vast communist regime in USSR. That communist regime has been working in USSR for a long time. Okay, so a vast country USSR. That time it emerged after socialist revolution or the Russian Revolution, but it went on. It passed from one leader to the other leader, and then it was seen that USSR has been involved in the Second World War with the Allied parties. It has grouped up and they have joined up the party, and then they fought the Second World War. And in the Second World War, they also emerged successful. Okay, and after that, it was seen that the two friends, US and USSR, during the Second World War, and after that, suddenly when Second World War finished, 1945, it was seen that USSR and US became pole apart. They separated from one another. Okay, they are not liking each other at that time anymore because of their two ideological differences, that is communism and capitalism, as I have said this earlier also. So it was seen that USSR on the race of bringing itself to the superpower position, along with US on the other side, they were doing up so much thing. They were producing so much thing. They were taking up so much welfare schemes. So much things had been established in USSR. People were given jobs, etc., etc., etc. But again, it was seen that there are officials who were power drunken, and because of that thing, it was not workable. The party, the Communist Party of USSR that time was not accountable to the common people. They were not responsible that much to the common people. Common people were not getting the benefits from the whole of the Soviet system as it was seen earlier, or it was as it was predicted that time that it may work out so nicely. Okay, so people began to lose faith on this system, and they have seen that in Western countries capitalism policy was working in a very successful way. So they started disliking this system. They started disliking the whole of the governmental system, and because they are not having jobs, the whole system is proving failure. USSR was not able to cope up with the problem. Then Gorbachev came. Gorbachev also could not cope up with this problem beyond his perestroika and glasnost policies. So all things went up like just like that. Okay, so at that time other leader came into being, and who was that person? Boris Yeltsin. Okay, Boris Yeltsin emerged as a national hero with his thoughts, with his the way of action he is been doing that time. It was seen that comparable to these two person, one is Gorbachev and one is Boris Yeltsin, people are seeing Boris Yeltsin as a more successful person. Okay, and beyond that, Boris Yeltsin, he has given the call of adopting capitalism in USSR if he came to power. So the situation became so much like that afterwards in December 25th, actually the date is December 25th, 1991, when Mikhail Gorbachev, the General Secretary of the Communist Party of USSR, he resigned. He thought he could not cope up with the situation, and he is in so much tension. The whole of the system is breaking down. The 50 states were breaking down one after the another, and these are coming in the news. It is like it is just being highlighted in the whole of the international arena. whole people are coming to know. पूरे पूरे वर्ल्ड को, विश्व को ये पता था ये सब कुछ क्या हो रहा है. ये सब कुछ टेंशन, ये सब कुछ देख के उनको लगा कि he could not
stay in this position and could not cope up with the situation. तो automatically he resigned from the post. That is the date is कौन सा date था वो 25 December 1991. Okay. So उसके बाद 31 दिसंबर तक यूएसएसआर में कुछ नहीं था, कोई गवर्नमेंटल सिस्टम नहीं था, ये जस्ट ऐसे ही चल रहा था, होल सिस्टम ब्रेकअप था, सब कुछ खत्म हो गया था उस टाइम में. ओके तो उसके बाद लगभग तब तय था कि अभी बोरिस जॉनसन भी बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर, और जिसको हम लोग बोलते हैं रशिया, क्योंकि यूएसएसआर ब्रेक डाउन हो गया था और उसके जगह में कौन आ गया था, रशिया. तो रशिया ने टू कवर कर लिया था. और एंड दिस पर्सन बोरिस जॉनसन ही हिमसेल्फ इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन दैट टाइम. तो वो वही थे जो फिर आए. एंड व्हेन रशिया टूक ओवर यूएसएसआर, फिर उस जगह पे वही बने दी फास्ट, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि नॉन कम्युनिस्ट यूएसएसआर या फिर नॉन कम्युनिस्ट रशिया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं. ओके एंड इन दैट कंट्री बोरिस जॉनसन बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट. तो पीपुल वर लुकिंग अप टू हिम एज ए हीरो, नेशनल हीरो, कि अभी तो कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हमें कुछ ना कुछ तो जॉब मिल जाएगा, कुछ तो अच्छा हो जाएगा, कुछ तो बेनिफिट मिल जाएगा. एंड ही हैज गिवन द कॉल ऑफ कैपिटलिज्म, डेमोक्रेटिक पैटर्न, लिबरलिज्म पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं, डेमोक्रेटिक पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सब अडॉप्ट करना स्टार्ट किया बोरिस जॉनसन ने. बहुत कुछ फिर रीएस्टेब्लिश किया, इकोनॉमी को रीएस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया, लोगों को फिर उनका हक दिलाया, फ्रीडम स्पीच जो आगे इतना नहीं था, वो सब कुछ धीरे धीरे लोगों को मिलने लगा. एवरीथिंग बिगेन टू काम डाउन स्लोली बाय स्लोली. ओके तो ये था द स्टोरी ऑफ यूएसएसआर, कैसे सुपर पावर एक टर्न राइज हुआ, फिर एक टाइम सुपर पावर की पोजीशन में ऑन द पीक ऑफ हाइट जिसको हम लोग बोलते हैं चले गए, और उसके बाद सडनली इट फॉल डाउन ऑल्सो. ओके नाउ अभी आज जो हम जो एरिया ले रहे हैं वो एरिया कौन सा है, रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. अभी देखो जब कोई सिस्टम ब्रेकअप होता है, जब कुछ चीज होता है, कुछ घटना घटता है किसी भी जगह पे, तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट्स तो होता है. तो इसमें भी जब यूएसएसआर ब्रेकडाउन हो गया तो होल इंटरनेशनल एरिना में कुछ ना कुछ तो बदलाव आ गया, कुछ ना कुछ तो चेंज हो गया. नाउ व्हाट इज दिस चेंज, अभी ये चेंज क्या था, कौन सा चेंज था ये, तो वो हमें अभी देखना है. ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो मैंने लिखा है यहाँ पे, आप देखो, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन. फर्स्ट वन इज एंड ऑफ कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन. अभी कोल्ड वॉर किसके बीच में था, किसके बीच में था कोल्ड वॉर, द कोल्ड वॉर इज बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर. ओके तो जब एक सुपर पावर जब ब्रेकअप हो गया ऑटोमेटिकली, तब कोल्ड वॉर का जो एक सिलसिला था, एक प्रोसेस था, वो खत्म हो गया. बिकॉज यूएस इज नॉट हैविंग एनी सेल्फिश reasons to go and indulge cold war in with new countries or something like that. तो यूएसएसआर जो एक सुपर पावर पोजीशन में था, जब वो ब्रेक डाउन हो गया ऑटोमेटिकली खत्म हो गया सब कुछ. तो एंड ऑफ यूएसएसआर लेड टू द कोल्ड वॉर, एंडिंग ऑफ कॉन्फ्रंटेशन. वो कॉन्फ्लिक्ट, वो जो सेल्फिश इंटरेस्ट, वो जो म्यूचुअल सस्पिशन, वो सब कुछ जो था उस टाइम में, वो सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगा उस टाइम में. ओके उसके बाद उसके साथ फिर और भी एक चीज आया, कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन के साथ और भी एक चीज आया, जैसे कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट. ओके आर्म कॉन्फ्लिक्ट, उस टाइम दोनों कंट्री ने अपने आप आर्म रिडक्शन करना स्टार्ट कर दिया था. कि यूएस ने न्यूक्लियर वेपन स्टार्ट किया तो यूएसएसआर ने भी न्यूक्लियर वेपन स्टार्ट किया. आर्म्स इम्यूनाइजेशन, मिलिट्री पावर जब रिबिल्ड किया, सैटेलाइट सिस्टम, वास्ट नेटवर्किंग पोजीशन, ये सब कुछ जब यूएस अपने आप कंट्री में करने लगा, तो फॉलोइंग दैट थिंग आल्सो यूएसएसआर आल्सो स्टार्टेड टू रिबिल्ड इटसेल्फ. ओके तो ये सब कुछ जो आर्म्स रेस, बेसिकली जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो था कि इसका अगर इतना परसेंटेज बढ़ गया तो हमें भी इतना बढ़ाना है, वो जो स्ट्रगल, वो जो एक आर्मामेंट का जो एक रेस जो चल के जा रहा था ना, वो खत्म हो गया. ओके ऑटोमेटिकली दिस हैज बीन एंडेड. तो एंड ऑफ आर्म्स रेस हम लोग बोल सकते हैं इसको. ओके उसके बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खत्म हुआ जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया. ओके या फिर यूएसएसआर जब ब्रेकडाउन हो गया, और कौन सा था, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट. क्योंकि कोल्ड वॉर का एक मेन मुद्दा क्या था, कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट का मेन मुद्दा था आइडियोलॉजिकल
कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। और वो आइडियोलॉजी कौन सा था? कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो ऑटोमेटिकली जब कम्युनिस्ट पॉलिसीज खत्म हो गया, कम्युनिज्म डिसबैंडेड हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी यूएसएसआर में खत्म हो गया, ओके। इवन यूएसएसआर जब रशिया बन गया तो उसके बाद उन्होंने क्या स्टार्ट किया? उन्होंने कैपिटलिज्म को स्टार्ट करना शुरू किया कि देखते हैं अभी कैपिटलिज्म पॉलिसी रशिया में लेके क्या हो सकता है। तो ऑटोमेटिकली दैट टाइम जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था वो भी खत्म हो गया। तो हमें कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन से क्या मिलता है? 3 चीज हमें मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मिलता है हमें कि कोल्ड वॉर जो टाइम जब हुआ तो ऑटोमेटिकली एट दैट टाइम जो कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो गया। एक जो सस्पिशियस जो नेचर था दोनों कंट्री के बीच वो सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि एक अभी यूएस अगर फाइट करेगा तो किसके साथ फाइट करेगा? तो ऑटोमेटिकली दैट कॉन्फ्लिक्ट एंडेड, ओके। उसके साथ आर्म्स रेस भी खत्म हो गया, क्योंकि यूएसएसआर अभी प्रोडक्शन वो तो उसमें पूरा पूरी एकदम बहुत सारा डिस्टर्बेंस आ गया, बहुत सारा ट्रबल टाइम चलने लगा यूएसएसआर में उस टाइम में, तो सब कुछ खत्म हो गया उस टाइम में, ओके। एंड आफ्टरवर्ड्स जो सबसे बड़ा एक चीज था आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कैपिटलिज्म कम्युनिज्म, वो भी खत्म हो गया बिकॉज कम्युनिस्ट पॉलिसीज हैज बीन डिसबैंडेड इन यूएसएसआर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज चेंज इन पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ओके। चेंज इन पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अभी जो पूरी वर्ल्ड में, ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1945 के बाद में हम जब देखते हैं तो उस टाइम में जो पावर रिलेशन था वो 2 ब्लॉक हो गया था ना। आप लोगों को मैंने बोला था 2 ब्लॉक, कौन सा 2 ब्लॉक? वन इज कैपिटलिस्ट ब्लॉक, कम्युनिस्ट ब्लॉक, ईस्टर्न अलायंस, वेस्टर्न अलायंस। तो नेटो, वार्सो पैक्ट, ये था ना ब्लॉक का जो सिस्टमेटिक वे, तो वो खत्म हो गया उस टाइम में, ओके। पावर रिलेशन में क्या आ गया अंतर कि बाइपोलरिज्म एंडेड, ठीक है। उसमें बाइपोलरिटी, क्योंकि हमारा इस चैप्टर का नाम ही है एंड ऑफ बाइपोलरिटी, बाइपोलरिज्म खत्म हो गया, क्योंकि बाइपोलरिज्म 2 में आएगा ना, यूएस एंड यूएसएसआर। तो जब एक पार्टी खत्म हो गया, एक देश खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिकली बाइपोलरिज्म एंडेड। अभी एक ही रह गया, वो कौन था? यूएस। यूएस अभी बन गया यूनिपोलर कंट्री, ओके, यूनिपोलर सुपर पावर कंट्री, और उसको हम लोग हेजेमोनिक कंट्री भी बोल सकते हैं एंड सोल सुपर पावर कंट्री भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो आज कंट्री में जो है आफ्टर यूएसएसआर ब्रेकडाउन, अभी का जो सिस्टम में जो है वो क्या है? समथिंग लाइक यूनिपोलर सिस्टम, दैट इज द होल हेजेमोनिक पावर इज बीइंग यूज्ड अप बाय whom? बाय यूएस। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है चेंज इन पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ओके। नेक्स्ट वन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बिकेम डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम, ओके। अभी कैपिटलिज्म पॉलिसी को चलना ही था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को तो चलना ही था अभी, क्योंकि कम्युनिस्ट पॉलिसी अभी पूरा फेलियर हो गया था यूएसएसआर में, ओके। तो यूएसएसआर ने क्या अडॉप्ट किया? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। तो ऑटोमेटिकली दिस हैज बिकम द से ऑफ द और सिस्टम ऑफ द न्यू रशिया, ओके। तो इट बिकेम डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम। उसमें मैंने लिखा आपको, देखो, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आपको वर्ल्ड बैंक तो पता ही है, और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड केम एज हेल्पर मैंने लिखा। एक्चुअली दैट टाइम ये जो था वर्ल्ड बैंक और IMF जो था, दे आर हेल्पिंग, दे स्टार्टेड हेल्पिंग द स्मॉलर कंट्रीज हु हैज बीन टर्न्ड अप विद द फॉल ऑफ द यूएसएसआर, ओके। ये वर्ल्ड बैंक और IMF एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही बना, ये इट वाज एक्चुअली क्रिएटेड बाय यूएस, ओके। तो ये जो वार टॉर्न कंट्री था वो सबको हेल्प करने लगा, गिविंग लोन्स और फिर रिस्ट्रक्चरिंग द कंट्री, बहुत सारा ये सब कुछ करने लगा वर्ल्ड बैंक और IMF। इवन जो यूएसएसआर जो होल सिस्टम जो ब्रेकअप हो गया, उस ब्रेकअप के बाद जो कंट्री जो उभर के आया, जो ओके न्यू सिस्टम में उभर के आया, तो अब इस वर्ल्ड बैंक और IMF ने ही हेल्प किया है उसको री एस्टेब्लिश करने में, ओके। बट विथ व्हाट पॉलिसी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी, एंड विथ दैट सम लिबरल पॉलिसी एंड डेमोक्रेटिक पॉलिसी भी, ओके। तो उसमें 3 चीज एक साथ में आ जाता है, वन इज कैपिटलिज्म पॉलिसी, वन इज लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिसी, ओके। तो कैपिटलिज्म पॉलिसी, लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिसी, जो अभी बहुत सारा कंट्री में इसको देखने को मिलता है अभी, ओके। तो कम्युनिस्ट पॉलिसी का जो एक सिस्टम था, गवर्नमेंटल प्लानिंग, इकोनॉमिक सिस्टम, सिर्फ गवर्नमेंटल टेक ओवर होगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, तो वो सब कुछ खत्म हो गया उस टाइम में, ओके।
तो अभी क्या आ गया, ये था कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी विथ लिबरल एंड डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट देखो लिखा मैंने इमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू स्टेट्स। ओके, तो उस टाइम में आप लोगों को सबको पता ही है कि इमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू स्टेट्स, क्योंकि 15 रिपब्लिक खत्म हो गया ना, तो खत्म होने के बाद उसमें से जो रशिया है वो उभर के आया, यूएसएसआर के बदले में वो उभर के आया। ओके, तो रशिया बिकेम द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। उसके बाद जो बहुत सारा स्टेट जो मैंने आपको यहाँ पे नाम दिया था 15 स्टेट्स, वो सब फिर ब्रेकअप हो गया और 15 स्टेट्स के बदले बहुत सारा स्टेट्स बन गया उसके बाद। ओके, बहुत सारा स्टेट्स बन गया, मेनी स्टेट्स इमर्ज ऑन द इंटरनेशनल arena with some new status, new identification, now with new economic policies। उनका अपना इकोनॉमिक पॉलिसी, अपना सब कुछ होने लगा उस टाइम में। ओके, तो नाउ इट वाज सीन, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है, यहाँ पे देखो कि बेल्टिक स्टेट्स। ओके, अभी बेल्टिक स्टेट्स कौन सा है, लिथुआनिया, लिथुनिया एंड एस्टोनिया। ये जो 3 स्टेट्स है, ये दिस स्टेट्स एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स बिकेम मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। ओके, तो यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक फाइनेंशियल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था जो यूरोप में बना था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसके मेंबर बन गए लोग। तो बिकॉज आफ्टर बिकमिंग मेंबर ऑफ दैट यूरोपियन यूनियन दे मे गेट हेल्प फ्रॉम दोस यूनियन। तो ये जो एक यूनियन होगा, एक मेंबरशिप होगा, तो उसमें से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट दे हैव जॉइंड अप यूरोपियन यूनियन। ठीक है, एंड दिस और नेटो, यूरोपियन यूनियन एंड नेटो। नेटो तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला, व्हाट इज नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज सेट अप बाय हुम, बाय यूएस। ओके, तो नेटो को भी बहुत सारे कंट्री ने ज्वाइन कर लिया। नेटो वाज मिलिट्री अलायंस, तो उसको भी बहुत सारे कंट्री ने ज्वाइन कर लिया। उनको लगा कि अगर हम लोग इसमें रहेंगे तो हमें बहुत सारा फैसिलिटी मिलेगा। ओके, इन द फ्यूचर। नेक्स्ट, दिस सेंट्रल एशियन स्टेट्स लिंक्ड अप विथ वेस्ट यूएस चाइना। अभी सेंट्रल एशियन स्टेट्स में गिरता है जैसे कि काजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ओके, अजरबैजान, ये सब सेंट्रल एशियन स्टेट्स है। दे हैव लिंक्ड अप विद यूएस। एक्चुअली यूएस ने लिंक्ड अप किया, और बिकॉज दोस एरियाज वर ऑल प्रोड्यूसिंग एरियाज, तो यूएस ने वहाँ पे बहुत सारा अपना मार्केट खोलने का भी कोशिश किया वहाँ पे आके। इवन चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेक अप ऑयल फ्रॉम दैट एरिया, तो उन्होंने एक मार्केट बना लिया वहाँ पे। ठीक है, तो वेस्ट यूएस एंड चाइना, तो द होल सिस्टम अभी हम देखते हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेस में कि होल सिस्टम जब ब्रेकअप हो गया, पूरा इंटरनेशनल सिस्टम चेंज हो गया। ओके, जो इतने दिनों से चल के आ रहा था इंटरनेशनल एरिना में एक सिस्टम, एक प्रोसेस, कोल्ड वॉर प्रोसेस 1945 टू 1991, ये बहुत लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग ईयर है, इसको होते ही जा रहा था। एंड आफ्टर दैट suddenly, slowly, not suddenly actually, slowly, it went up and it break down, and this whole of the superpower country has broken down, that is USSR. Okay, तो हर चीज का कुछ ना कुछ नतीजा होता है। तो USSR जब फॉल हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो इसका नतीजा क्या निकल के आया, these are the consequences of disintegration of Soviet Union. Okay, तो जैसे कि बोलते हैं ना कि जब एक देश पावर में रहता है तो उसके पास कुछ क्या ना होता है, सब कुछ होता है। ओके, बट जब बिखरता है तो बिखरते चला जाता है। तो दैट थिंग हैपेंड विथ USSR also. Okay, but afterwards when Russia came into being and Russia has taken over, उसके बाद धीरे धीरे slowly life began to go on again, और उसके बाद तो आज का रशिया और totally different रशिया है आज का। Okay, so this is all about the consequences of disintegration of Soviet Union. Okay, thank you students.